Namaskar and welcome to this tarot reading. Now this is a no contact reading for the sign of Aquarius from 21st to 31st of December. That is the last 10 days of the year. Now please remember this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates. जिनके साथ रेजोनेट होता है वो नहीं रखना है. You can check your sun, moon, rising and Venus, and remember that energies can always shift or change and the roles can be reversed anytime. This could be your energy or vice versa. So let's see what's going on with the Aquarius. What is the energy of Aquarius, my love team, for the next 10 days? What's going on with the Aquarius for the next 10 days, my love team? What's going on with the Aquarius for the next 10 days, my love team? What's going on with the Aquarius? Okay, we have the Knight of Cups. Now Scorpio just got this Knight of Cups. Now you could be dealing with a Cancer, Pisces, Scorpio. ये कोई person भी हो सकता है जिसके साथ आप deal कर रहे हैं. It could be their energy or this could be your energy. आप emotionally open हैं towards your person, and maybe you want to offer a little flirtation or some sort of friendship to your partner. We will clarify and see what this is all about. Now let's clarify the energy for the person of Aquarius. What is the energy for the person of Aquarius, my love team? Or you could be dealing with a Scorpio also, possible. So let's see what's the energy of the person of Aquarius. ओके आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है. तो लाइक दिस इज़ ऑल्सो यू कुड बी डीलिंग विद समवन हु इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बट दिस कुड बी यू, एक्वेरियस एनर्जी. तो आप जो है आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिटैच्ड हैं और काफ़ी लॉजिकल है और उनको एग्जैक्टली पता है कि उन्हें क्या चाहिए, और वो दे वांट ट्रूथ ओनली. वो मतलब दे वांट नथिंग बट ट्रूथ. उनको पूरी की पूरी क्लैरिटी है इस रिश्ते के बारे में, बिकॉज यू पीपल आर इन नो कॉन्टैक्ट. तो आपकी जो पर्सन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है और उन्हें कुछ भी हैंकी पैंकी नहीं चाहिए. दे आर एब्सोल्युटली क्लियर व्हाट दे वांट. एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द चैरियट. सो दे आर मूविंग फॉरवर्ड इन द लाइफ with the three of swords. There was a breakup between you two, lot of pain also. Now let's see what is the outcome of both of you. What is the outcome of this relationship of Aquarius? What is the outcome of this relationship of Aquarius? Let's see what's the outcome. What is the outcome? Okay, so the outcome is the Ace of Wands. Very beautiful outcome. This is a brand new beginning. किसी चीज़ के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में. हो सकता है कि वी विल क्लैरिफाई एंड सी कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में एक नई शुरुआत चाहते हैं, या आप लोग अपने इंडिविजुअल लाइफ्स में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं. वेरी पैशनेट, वेरी फायरी एनर्जी, सम न्यू आइडिया, कोई नया आइडिया, कोई नया न्यू बिगनिंग. एब्सोल्युटली लॉट ऑफ पैशन इन दैट. बॉटम ऑफ द डेक इज़ द वर्ल्ड. तो आप एक बहुत ही डिफ़िकल्ट साइकिल क्लोज कर चुके हैं अपनी लाइफ में, एंड द आउटकम इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल. सो लेट्स क्लैरिफाई द नाइट ऑफ कप्स फॉर एक्वेरियस, माय लव टीम. Please clarify the Knight of Cups for Aquarius for the last 10 days. Okay, so we have all the three court cards. King of Cups we have, the Two of Pentacles we have, and with the Queen of Cups. King and the Queen. There is a divine couple here. King and the Queen of Cups with the Two of Pentacles in between. तो और आपकी एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स. तो एक्वेरियस यू आर जगलिंग. यू हैव टू मेक अ डिसीजन. देयर आर टू पीपल हियर, किंग एंड द क्वीन. और आपको ऐसा लगता है कि अब नाउ यू सी दीज टू आर नॉट फेसिंग ईच अदर.
ये जो किंग है ये कहीं और देख रहा है, ये क्वीन कहीं और देख रही है। तो आप दोनों के बीच में डेफिनेटली गैप है, आप दोनों के बीच में फासले हैं, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, और यू आर जगलिंग बिटवीन द टू व्हाट टू डू। मतलब आप एक तरीके से एक ब्रिज बनाना चाहते हैं, नाइट ऑफ कप्स, यू आर वांटिंग टू ब्रिज द गैप। आप एक ब्रिज बना के एक दूसरे के साथ आना चाहते हैं। मे बी दैट इज़ वाई यू हैव टू टेक अ डिसीजन। वेरी वेरी interesting energy here, but you have to be a little patient also. So this is what it is telling me here. Now let's clarify the Queen of Swords as the energy of your person. आप दोनों ही एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, बट यू आर डेफिनेटली अ डिवाइन कपल हियर, और आप ये डिस्टेंस को मे बी ख़त्म करना चाहते हैं. सो लेट्स क्लैरिफाई. Very strong Cancer, Pisces, Scorpio energy here. Let's clarify the Queen of Swords as the energy of your person. Yeah, we have got the Two of Cups at the bottom of the deck. We have got the Five of Wands, the Five of Pentacles, and the Seven of Wands. 2 5s, that is equal to 10. So there is a big cycle finishing here. और आप दोनों एक दूसरे से डेफिनेटली अलग हैं. क्यों अलग हैं? बिकॉज मे बी आप लोगों के विचार नहीं मिलते हैं. देर आर लॉट ऑफ आउटर इंटरफेरेंसेज. आप लोग सेम पेज पे नहीं है. देर आर लॉट ऑफ डिसअग्रीमेंट. देर इज़ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. मे बी या इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है. एंड द पर्सन फील्स दैट दे हैव बीन दे आर वेरी हर्ट, और आपने उनको छोड़ दिया है. एंड सो दैट इज़ वाई दे आर वेरी वेरी गार्डेड. लेकिन दे आर रेडी टू फाइट. दे आर पुटिंग अप देयर स्टैंड. वो अपना स्टैंड नहीं हटाना चाहते हैं. ऑल दो टू ऑफ कप्स, दे मे बी इमोशनल अटैचमेंट टू ईच अदर, बट उन्हें लगता है कि उनके साथ चीटिंग या लाइंग हुई है. एंड सो दे आर वेरी वेरी गार्डेड एंड दे वांट टू कीप देयर स्टैंड. जो भी उनका स्टैंड है, दैट इज़ कोल्ड डिटैच रहना, वो वही करना चाहते हैं. दे वांट टू रिमेन वेरी वेरी लॉजिकल. वो कहीं पर भी इमोशनल नहीं है यहाँ पे. देर इज़ एक्सेप्ट फॉर यू, देर इज़ नो इमोशनल एनर्जी in their energy. So emotions नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे. एंड दे नो कि आप लोगों के विचार या आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है. सो लेट मी क्लैरिफाई द आउटकम विच इज़ द एस ऑफ वॉन्ड्स. Please clarify the outcome which is the Ace of Wands for Aquarius for the next 10 days. Okay, we have got the Ace of Cups, we have got the Queen of Pentacles, and we have got the Nine of Cups. तो या डेफिनेटली यहाँ पे somebody is wishing for a brand new start. कोई ऐसा आप दोनों में से, I think it is you Aquarius who wants to have a brand new start, very passionate start. एक न्यू आइडिया है आप लोगों का, एंड दिस इज़ अ विश फुलफिलमेंट फॉर यू. आप चाहते हैं कि यू शुड बी हैप्पी, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ पास्ट पर्सन ओनली, soulmate. You have lot of memories with that person. You have created lot of memories with that person. और आप मे बी you want some sort of reconciliation or reunion or patch up with this person. So you want to have a new start with this person. This is very very interesting. Aquarius for the next 10 days. So you will be the energy of trying to have a new start with this person. Okay, and you are wishing for that, you know, that you want to have a reconciliation, or you want to meet this person, or you want to patch up with this person. Now let's see what's the guidance for you. What is the guidance for Aquarius, my love team? Please give me the correct guidance. Okay, so the guidance is nightingale spirit, love is all around. नाइटिंगेल स्पिरिट, लव इज़ ऑल अराउंड. तो आप जो कोई भी नई शुरुआत चाहता है उनके लिए बहुत ही बढ़िया और सुंदर मैसेज है कि अगर आप चाहें तो आप प्यार से सब कुछ जीत सकते हैं. लेकिन उसके लिए आपको पहले सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है, तभी आप दूसरे को प्यार दे सकते हैं. आपको अपने आप को हील करना ज़रूरी, तभी आप दूसरे को हीलिंग दे सकते हैं. विद द बॉटम ऑफ द डेक इलेक्ट्रिक हील स्पिरिट, ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ. तो अगर आप चाहते हैं ब्रांड न्यू स्टार्ट, you know, Ace of Cups you have got. If you want this idea, if you want this brand new idea coming to your mind, तो इसको
इसको सच में बदलने के लिए यू हैव टू बी लविंग, यू हैव टू बी सॉफ्ट, यू हैव टू बी काइंड टू द अदर पर्सन. दूसरा पर्सन हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा आपसे डरा हुआ हो, या उनको लगता है कि फिर से साइकिल रिपीट होगी. सो नो, यू हैव टू बी काइंड इनफ टू अंडरस्टैंड देम व्हाट दे आर अंडरगोइंग, बिकॉज पास्ट में ये सब चीज़ें हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में. सो यू हैव टू बी लविंग टू देम. वेरी वेरी ब्यूटिफुल एडवाइस यू हैव. नंबर 41 विच इज़ इक्वल टू 5. सो चेंज, 5 इज़ अ नंबर ऑफ चेंज. So big changes happening in the next 10 days for you, at least mentally. So this is what I have for you, Aquarius. I hope it helped, and if you like the reading, please hit the like button and see you next time. Bye bye.